ہمارے نہایت ہی مہربان اور قدوس اور جلالی آسمانی باپ کے پوتر نام میں آج شب پھر ہمارے ساتھ اس آئی ڈی پر جتنے بھی آپ ناظرین اور سامعین موجود ہیں، آپ تمام کی خدمت میں خاکسار آداب بجا لاتا ہے اور پھر سے اپنے لیے بھی یہ بڑے اعزاز کا سبب سمجھتا ہوں کہ خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوئی کہ یہ جو پرستش کی گئی اس کے وسیلہ سے، ان دعاؤں کے وسیلہ سے، اور پھر خداوند کے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ مل کر برکت پانے والا ہوں۔ ان ساری باتوں کے لیے سارا جلال خداوند اپنے خدا کو دیتا ہوں۔ آج کے دن ہم عہد عتیق میں سلاطین کی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور جب ہم سلاطین کی کتب کا مطالعہ کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے اور بڑھ رہے ہیں تو ابھی سلاطین کی دوسری کتاب کے تقریباً اختتام پر ہے۔ میں 24 باب سے آج آغاز کروں گا اور پھر اس کے بعد ایک اور باب ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں 24 باب پورے کے پورے پر کچھ کہوں گا، نہیں، میں صرف چند آیات آپ کے ساتھ مل کر تلاوت کروں گا اور ان آیات پر آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ ہم سلاطین کی کتب میں ان سلاطین کی بابت سیکھتے ہیں جو یہودا اور اسرائیل میں سلطنت کرتے رہے، ان بادشاہوں کے بارے میں جو یہودا اور اسرائیل پر بادشاہی کرتے رہے، اور ان کے نام خدا نے کلام مقدس میں سنہلی حروف میں لکھے ہیں اپنے پاک روح کی تحریک سے، کیونکہ ان شخصیات کی زندگی میں کئی ایسے اسباق ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے سبق آموز ہیں، نمونہ کے طور پر بھی ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں، اور کئی ایسے بادشاہ ہیں جن کی زندگیاں، طرز حیات میرے لیے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے۔ ان میں سے ایک وہ بادشاہ ہے جو 25 برس کی عمر میں بادشاہ بنا اور 11 برس تک یہودا بالخصوص یروشلیم پر اس نے سلطنت کی ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں اس 24 باب کی پہلی چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کر دوں۔ لکھا ہے، اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوکت نظر نے چڑھائی کی اور یہویاکین 3 برس تک اس کا خادم رہا۔ تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا اور خداوند نے کسبیوں کے دل اور ارام کے دل اور مواب کے دل اور بنیامون کے دل اس پر بھیجے اور یہودا پر بھی بھیجے، تاکہ اسے جیسا خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا ہلاک کر دے۔ یقیناً خداوند ہی کے حکم سے یہودا پر یہ سب کچھ ہوا، تاکہ منسی کے سب گناہوں کے باعث جو اس نے کیے ان کو اپنی نظر سے دور کرے، اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جسے منسی نے بہایا، کیونکہ اس نے یروشلیم کو بے گناہوں کے خون سے
भर दिया था और खुदावन ने मुआफ करना ना चाहा। अगली भी 3 आयात तलावत किए देता हूं, लिखा है, और यहोयाकीम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया सो किया, वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं, और यानी कलमबंद नहीं सवालिया निशान है, इसका मतलब यह है कि वो वहां पर कलमबंद है। और यहोयाकीम अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसका बेटा यहोयाकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह मिस्र फिर कभी अपने मुल्क से बाहर न गया, क्योंकि शाह बाबल ने मिस्र के नाले से दरियाए फिरात तक सब कुछ जो शाह मिस्र का था ले लिया था। ये जो 24 बाब की सलातीन की दूसरी किताब के 24 बाब की पहली 7 आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है। हम यहां यहोयाकीम की बाबत सीखते हैं, खासकर इस बाब में, क्योंकि हम 23 बाब में बहुत कुछ सीख चुके हैं और 22 बाब में भी। यह बात याद रहे कि उस दौर में मिस्र और बाबल और असूर, ये ऐसी बादशाहतें और सल्तनतें थी, ऐसी कौमें जिनको उस वक्त के एतबार से सुपर पावर के तौर पर जाना जाता था। असूर भी और मिस्र भी और बाबल भी। हम देखेंगे भी बाद में कि असूर को, इसराइल को असूर असीर बनाकर ले गया था और यहूदा को बाबल। मैंने कहा हम देखेंगे, और ये तारीखी वाकयात हैं और कलाम मुकद्दस में मुदर्रज हैं। जूं जूं हम स्टडी करके आगे बढ़ेंगे हमें पता चलता चला जाएगा। और उसकी वजूह क्या थी? कई एक वजूह थी, लेकिन एक वजह जो हमें नजर आती है वो ये कि उन्होंने उस खालिक हकीकी को, जो मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया, उसको भूल गए और उसका जो मकाम था उसको वो मकाम उसको दिया नहीं गया। और खुदावंद आज मुझसे भी और आपसे भी ये सवाल करता है कि तुम भी गुनाहों के मिस्र में असीर थे। अबलीस जहां का फिरौन था और तुम उसके आहनी पंजों में जकड़े हुए थे। मैं तुम्हें निकाल कर लाया हूं। अब बता कि तेरी सोचें किसकी हैं, तेरे काम किसके हैं, किधे पीछे चलना है। ये खुदावन आज मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि जलाल तो मुझे मिलना चाहिए, जरा अपने आप को कलाम के इस तराजू पर तौल कर देख कि तेरी जिंदगी से जलाल किसको मिलता है। अजीजों, मैं अक्सर औकात कहता हूं कि जब हम इस कलाम के तराजू पर अपने आप को तोलते हैं तो वो निविश्ताए दीवार हमें नजर आता है, मिने मिने तकीलो फरसीन, यानी तो तोला गया और कम निकला है। एनी हाउ, बारहा बार बनी इसराइल ने
खुदा के बरखिलाफ बगावत की और सरकशी की। इवन माबूदे हकीकी को छोड़कर माबूदे मजाजी यानी बुतों की पूजा और प्रस्तश तक होने लगी। इवन हैकल में भी लाकर बुत रखे गए, और खुदा अपना जलाल किसी को नहीं देता। और यही सबब है कि बारहा बार खुदा की तरफ से उन पर मार पड़ती रही। एक तरफ मिस्र बब्बर शेर की तरह यहूदा पर धाड़ रहा था, दूसरी तरफ असूर धाड़ रहा था, और तीसरी तरफ बाबल उनकी तरफ धाड़ रहा था कि इनको किसी तरह अपने हथकंडे में ले लिया जाए। और मिस्र से कहीं ज्यादा उस वक्त बाबल एक पावरफुल सल्तनत थी इंसानी पहलू के एतबार से। जब खुदा की बादशाही और उसकी सल्तनत का अम्ब्रेला छतरी ऊपर से हटा दी जाए, तो फिर कौमों की, दुनियावी बादशाहों की और तसल्लत की छतरियां हम पर जबरदस्ती आ जाती है, क्योंकि हमने उस खुदा की जो हमारा मुहाफिज और पनाहगाह है उसकी परवाह नहीं करते हुए और ना कहते हुए हमने दूसरे माबूदों की पूजा की है। यहां पर हम देखते हैं कि जब मौका मिला तो शाहे बाबल नबूकत नजर, वही जो दानियल और सदरक और अब्दनजू वगैरह को भी ले गया था। ये सदरक मिसक अब्दनजू उनके असल नाम नहीं है, लेकिन एनी हाउ वही नबूकत नजर अब यहूदा पर चढ़ाई करता है, उनको अपने हाथों में गिरफ्त में ले लेने के लिए। और उससे पहले यकीन बादशाह असूर और मिस्र के साथ मिला हुआ था, क्योंकि हमें आगे बढ़ने से हमें पता चलता है कि उसने क्या कुछ किया हुआ था। 9 आयत में लिखा है कि उसने बदी की। ये 9 आयत आज के मतन में शामिल नहीं है, लेकिन एक बात जो यहां हमें नजर आती है वो ये है कि शाह मिस्र और शाह असूर को वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था, जबकि बाबल ऑलरेडी मिस्र का दुश्मन था और वो नहीं चाहता था कि यहूदा पर कोई और काबिज हूं, मैं काबिज होऊंगा। और जब शाह बाबल नबूकत नजर ने चढ़ाई की, काबिज हो गया, और यकीम 3। आप सबके लिए न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट की एक नई पेशकश। हमने आपकी खिदमत में किताब मुकद्दस पर मबनी यानी तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, सहाइफुल अंबिया इकराम और इंजील मुकद्दस पर मबनी एक खूबसूरत ऑनलाइन प्रोग्राम का इनेकाद किया जो बिला मुआवजा है, मुफ्त। लिहाजा आज ही आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। हमारी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है www.newlifeinstitute.org।
उसने ऐसे पाप किए थे जिस सबब से वो नबूकत नजर की गुलामी में, उसके तसल्लत में अब अपना जो बकिया जीवन था वो गुजारने लगा और अपनी तमाम तर कुव्वत उसी के लिए सर्फ करने लगा। और फिर वक्त आया कि नबूकत नजर अब बाबल की तरफ वापस जाने के लिए जल्दी करे तो क्या होता है, यहोयाकीन नबूकत नजर से बागी हो जाता है, उससे मुनहरिफ हो जाता है, उसको गोया छोड़ देता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हम शायद सोचें कि अगर वो नबूकत नजर से बागी हो गया तो हो सकता है अब कोई बेहतरी उसकी जिंदगी में आए, या पॉसिबल है कि वो खुदा को अपनी जिंदगी में तरजीह और प्रायोरिटी दे। लेकिन नो, ऐसा नहीं हुआ था, कोई बेहतरी नहीं आई। और यूं यहोयाकीम ने यहूदा पर राज तो किया, लेकिन उसने अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं किया, जिस सबब से खुदा यहूदा पर और यहोयाकीम पर मुश्किलात और मसाइब लाता है। क्या इसमें मेरे लिए और आपके लिए सबक नहीं है? ऑफ कोर्स सबक है, और वो ये कि जब हम जिंदा खुदा को छोड़ देते किसी भी चीज या किसी भी शख्सियत को प्रायोरिटी देते हैं, तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि खुदा अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता, और उसकी वजह से हमें बरकत नहीं मिलती, बल्कि और प्रॉब्लम्स के हम शिकार होते हैं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, वो 3 बरस तक गुलाम रहा, फिर उससे मुनहरिफ हुआ, लेकिन खुदा की तरफ रागिब नहीं हुआ, जिस सबब से खुदा कई और उसके लिए मुश्किलात खड़ी करता है। क्या खुदावन ने कसदियों को उस पर चढ़ाया जो बाबल की और मिस्र की और दूसरों की इत्तेहादी अफवाज थी, बिलखसूस बाबल की, उनको इन पर चढ़ाया। कसदियों के गोल, आराम के गोल, मुआब के गोल, बनियामून के गोल उन पर भेजे, और यहूदा पर भी और उस पर भी, ताकि जैसे खुदा ने नबी की मार्फत फरमाया था, यहोयाकीम के साथ भी और यहूदा के साथ भी वैसे ही हो। जिंदगी में कई बार, इवन हर रोज, कई ऐसे अजीजों के दुआया पॉइंट्स होते हैं, दुआया दरखास्तें होती हैं जो कहते हैं मेरे लिए इस बात के लिए दुआ की जाए, खा वो फेसबुक पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल्स, मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स का बयान करते हैं, और यके बाद दीगरे कोई ना कोई प्रॉब्लम का पहाड़ गिरता ही रहता है। और शायद हम में से भी कई इसी तरह अपनी जिंदगी में महसूस करते हों, लेकिन सोचने का मकाम यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ऐसे वसाइल पैदा कर रहा है कि हम इन वसाइल और जराए के जरिया से अपने आप को फुली
खुदा के सुपुर्द कर दे। ये जितने भी नबूकद नजर के जो इत्तेहादी थे, ये काफी ताकतवर थे, काफी ताकतवर लोग थे, और ये सब के सब यहूदा पर अब हमला आवर होते हैं। और बहुत सारे लोग कहते थे उस वक्त कि यहूदा अब चूंकि खुद मुख्तार है, आजाद है बाबल, मिस्र और असूर से, और किसी की गुलामी में नहीं है, इसलिए अब वो खुदा के साथ चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और खुदा ने उनकी अदालत की। खुदा जानता था कि ना तो यहूदा ने और यहोयाकीम ने तौबा की, और ना ही ये तौबा करेंगे, और उसने, खुदा ने हल यही निकाला कि दूसरी कौमों को उन पर चढ़ा लाया। और यहूदा अगर अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देता, तो फिर तो खुदा अपने कहर और गजब के नजूल से बाज रहता, उनकी अदालत ना करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहां यहूदा में और यरूशलेम में बेशुमार खुदा के लोगों के, इवन मासूम जानू के खून बहे हैं, और मुनस्सी के वक्त से ऐसा होता चला आ रहा था। और हमने देखा है कि खुदा ने जब इन लोगों को यहूदा पर और यहोयाकीम पर चढ़ाया, तो उसके पीछे उनके गुनाह थे, और खुदा यहूदा की और यहोयाकीम की अदालत कर रहा था। और जब मैं अहद अतीक में ही यर्मिया नबी का सहीफा पढ़ता हूं, और उसका 22 बाब, यर्मिया 22 और उसकी 18 और 19, तो यहां पर लिखा हुआ है, यहां ऊपर लिखा है ना, हमने देखा है 24 बाब में, जैसा खुदा ने अपने बंधु नबियों की मार्फत फरमाया था, बिल्कुल वैसे ही हम यहां आगे देखते भी हैं कि वैसे ही हुआ। यर्मिया और उसके 22 की 18 और 19 यहां लिखा है, इसीलिए खुदाबंद यहोयाकीम शाह यहूदा बिन यूसिया की बाबत यूं फरमाता है कि उस पर हाय मेरे भाई या हाय बहन कहकर मातम नहीं करेंगे, उसके लिए हाय आका या हाय मालिक कहकर नोहा नहीं करेंगे। उसका दफन गधे का सा होगा, उसको घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक देंगे। और ये किसके बारे में बात हो रही है? ये यहोयाकीम की बाबत नबुवती रूह में बात हो रही है। और अब जब फिर से नबूकदनेस्सर इंतहाई गुस्से में लाल पीला होता है, तो फिर वो एक और स्टेप लेता है। जब मैं दूसरा तवारीख देखता हूं, तवारीख की दूसरी किताब और इसका 36 बाब, इस 36 बाब में बड़े क्लियरली हमें सबक मिलता है कि वहां पर क्या हुआ। 36 की 5 आयत से कलाम में मुकद्दस में लिखा है, यहोयाकीम 25 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 11 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की,
اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا. ہم بات کر چکے ہیں. آگے دیکھیے. اس پر شاہ بابل نبوکت نظر نے چڑھائی کی اور اسے بابل لے جانے کے لیے اس کے بیڑیاں ڈالی یہویاکین کو. اور نبوکت نظر خداوند کے گھر کے کچھ ظروف بھی بابل کو لے گیا اور ان کو بابل میں اپنے مندر میں رکھا. اور یہویاکین کے باقی کام اور اس کے نفرت انگیز اعمال اور جو کچھ اس میں پایا گیا وہ اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہے. اور اس کا بیٹا یہویاکین اس کی جگہ بادشاہ ہوا. تو اس کو بیڑیاں ڈال کر بابل لے جایا گیا. لیکن جو حوالہ ہمارا سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کے 24 باب کے اختتامی آیات ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ یہویاکین کا جو کارنامے ہیں وہ تمام کے تمام نیگیٹو آئدر پازیٹو، وہ سب کے سب شاہوں نے یہودا کی تواریخ کی کتب میں آلریڈی مندرج ہیں. لیکن آخر پر لکھا ہے کہ جب یہ اس کو لے گئے، اس کو وہاں پر لے جایا گیا، وہاں پر جا کر وہ مر گیا. یہویاکین اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ جب اس کو لے جایا گیا، نہ صرف بیڑیاں ڈال کر وہاں پر جا کر مر گیا، اور باقاعدہ جیسے ایسے ہی گڑے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ویسے گڑے میں ڈال دیا گیا. کیونکہ نبوت ہوئی تھی کہ اس کو گھسیٹ کر اسی طرح سے باہر پھینک دیا جائے گا شہر کے باہر. اور باقاعدہ ویسے ہی ہوا. اس کو یروشلم کے پھاٹکوں کے دور باہر لے جایا گیا اور پھینک دیا گیا ہے. نام و نشان مٹ گیا ہے. اب ہمارے لیے جو ان ساری آیات میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ بابل نے جو حصہ یہودا کا تھا اور یہویاکین کو لینا، وہ اس نے لے لیا. مصر بھی اس سے ڈرتا تھا، اور اس کے بعد مصر اس حد کی سے آگے نہیں بڑھا. 7ویں آیت کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے. غیر قومیں یہودا پر اور یہویاکین پر چڑھائی کی. نبوکت نظر بادشاہ اس کو لے گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی. کیا ریزن تھا؟ ایک ہی بات کہ خدا کی نافرمانی اور سچی توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع نہ لانا. عزیزو، میرے خیال میں اگر آج اور کچھ بھی نہ کہوں، اور ویسے کہوں گا بھی نہیں، تو یہی کافی ہے کہ خدا نے ان تمام گردن کش، نافرمان، باغی، ہٹ درم اور ہڈ حرام اور نفرتی کام کرنے والوں کو اور خدا کی نافرمانی کرنے والوں کو اس نے چھوڑا نہیں. جو واپس توبہ کر کے اس کی طرف رجوع لائے، خدا نے نینوا کے لوگوں کی طرح ان کو بحال کیا. لیکن جو اپنی کٹے والی ضد میں مر گئے، خدا نے ان کو مزہ چکھایا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو. عزیزو، آئیں آج ہم اس مختصر سے کلام کے اس حصے کے ذریعہ سے اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو فلی
खुदावंद के हुजूर सौंप देने वाले हो और अपने आप में देखते हुए जहां कमियां और कमजोरियां और गलतियां और खताएं नजर आती हैं, वहां हम अपने आप को उस जिंदा खुदा के हाथों में सौंपते हुए अपनी हार मान लें, अपने गुनाहों का इकरार कर लें, तौबा कर लें और उसकी तरफ रजू लाएं ताकि वो हमारी जिंदगी में गहरा काम करे और हम उसके इरफान और उसकी मार्फत में दिन ब दिन बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं। खुदावंद मुझे और आपको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और अपनी जिंदगी पर गौर करने का फजल अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू।